सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अरे मोमिना तुम कहाँ सो गए हो, अरे मोमिना तुम कहाँ सो गए हो, खुदा का ये कुरान लुटा जा रहा है। आवाज़ आ रही है मदीने से तुमको, आवाज़ आ रही है मदीने से तुमको, के दर दर के क्यों ठोकरें खा रहे हो। मोहम्मद के यारों में क्या ताज़गी है, मोहम्मद के यारों में क्या ताज़गी है। बुरा रोज़ कहना की आदत बनी है, वो शीशे में खुद अपना मुँह देखते हैं, वो शीशे में खुद अपना मुँह देखते हैं। बुरों को बुरा मुँह नजर आ रहा है। अरे मोमिनो तुम कहाँ सो गए हो, अरे मोमिनो तुम कहाँ सो गए हो, खुदा का ये कुरान लुटा जा रहा है। गरीबों पे ज़ुल्म सितम करने वालों, गरीबों पे ज़ुल्म सितम करने वालों, तुम अपनी खुदाई कदम बढ़ने वालों। न दुनिया न दौलत न शाही रहेगी, न दुनिया न दौलत न शाही रहेगी। वो इंसान का दिन करीब आ रहा है, वो इंसान का दिन करीब आ रहा है, वो इंसान का दिन करीब आ रहा है। सुभान अल्लाह। अब मैं दावत देती हूँ मैम सबा को कि वो आपके सामने बीबी वेलफेयर ट्रस्ट का तारुफ पेश करें। सो प्लीज़ वेलकम। Assalamu alaikum. Bismillah, by the grace of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, we welcome all the attendants to a such prestigious event. Today we are gathered here for celebration of Defence Day, starting with the introduction of BB Welfare Trust, who organized such a beautiful event. In 2005, BB Welfare Trust decided to take the responsibility on its shoulders to help the poor handicapped people. In start, it looked like an unclimbed cliff as Allah guides that one. Only get what He efforts for so taking this aim with them. They worked from dawn to dusk, and by their efforts, they get themselves registered by government in 2010. Now, by the grace of Almighty, BB Welfare Trust is working for the development of poor, handicapped, and orphans. They are taking fruitful steps in education, skill development, and food programs. They are also providing legal aid to poor people. In the last 3 years, BB Welfare Trust have reached 4,000 poor deserving people in the food programs. They have their special attention to widows. MashaAllah, BB Welfare Trust provided 500 handicapped people with wheelchairs and white canes. One special bike is provided to a handicapped person, and this year 31 marriages of poor deserving couples were done by BB Welfare Trust.
Now BB Welfare Trust is running 24 schools. Thank you. Now I would like to call Mahrukh to introduce Soch. Please come. Thank you, Saba. Now, Soch was established in 2010, governed by the young leadership of Pakistan with particular focus on protection of child rights and in the field of education, skill development, health and other sectors of social welfare. Soch has a vision to protect child rights, promote social justice and awareness of environmental protection. It put its first step on the ground with the first project in August 2010 with flood relief camp for the victims of flood in district of KPK, Punjab and Balochistan. After that, Soch Free Child Health Care Center, Soch Child Education and Care Center provided children with free education, Soch Tech Learn Program, Vocal Training Center in Barako and Nawapind, where females are trained for sewing and cutting, stitching and decoration items. In the future, Soch is planning for opening schools for orphan children, which will be called as the Sun School in Kohat, Islamabad, Gujranwala and Lahore. We wish them best of luck for a bright future after years of struggle. Thank you, ladies and gentlemen. Now I would hand over the stage to Humaira for further proceeding with the program. निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, यही है रखते सफ़र मीरे कारवां के लिए। अब मैं दावत देती हूँ बीबी वेलफेयर ट्रस्ट की चेयरपर्सन मैडम नाइला रूबी को कि वो आएँ और योम दिफा के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बीबी वेलफेयर ट्रस्ट, सोच NGO, तमाम ऑर्गेनाइज़र्स की तरफ से हमारे मेहमान आने गरामी, चीफ गेस्ट हमारे क्योंकि अभी देर से हैं लेकिन मैं उन्हें वेलकम कर रही हूँ। तमाम असातिज़ा कराम को और बहुत प्यारे स्टूडेंट्स को जो कि इस खूबसूरत महफिल में आए हैं, इनको खुश आमदेद। 14 अगस्त 1947 के बाद का हर दिन इस अर्ज़े पाक पर आज़ादी का दिन है और खुशहाली का दिन है। हमारी मस्बत और मनफी सोच उसे वैसा ही बना देती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डिफेंस डे क्यों मनाया जाता है, लेकिन आज के दौर में हमारी नई नस्ल पे दूसरी बहुत सी आजमाइशें पड़ गई हैं, इनके जज्बे मांद पड़ गए हैं। तो हमने ये दिन मनाने का फ़ैसला इसलिए किया कि ये एक उनके लिए रिफ़्रेशिंग कोर्स होगा। सोच और बीबी वेलफेयर ट्रस्ट ने ऐसे बच्चों के साथ ये दिन मनाने का फ़ैसला किया जो बच्चे पैदाइश के बाद से ही अस्करी तबीयत हासिल करना शुरू कर देते हैं। मसलन नामुनासिब सहूलतें, नामुनासिब खुराक, शदीद मौसमी असरात और उन पे जो सहूलियात उनको मुयस्सर नहीं हैं और ये तमाम चीज़ें उन पे डायरेक्ट उनकी ज़िंदगियों पे असरअंदाज होती हैं, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान के उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं जिनके पास चादर तो है लेकिन अगर वो सर ढांपते हैं तो पाँव नंगे और अगर पाँव ढांपते हैं तो सर नंगा हो जाता है। ये बच्चे एक किस्म की अस्करी तरबियत हासिल कर रहे हैं, नामुनासिब हालात की तरह, जैसे कि फ़ौजी मुकाबला करते हैं, बिल्कुल इसी तरह ये अपनी ज़िंदगी के साथ लड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जनाब, डिफेंस डे बनाने का मतलब ये भी है कि हम अपने उन लेजेंड शोहदा और अपने वतन पर कुर्बान होने वाले हीरोज़ को खराज तहसीन पेश करें जिन्होंने नामनासिब हालात में रात की तारीकी में अचानक हमला आवर होने वाले इंडियंस को वो सबक आमोज शिकस्त दी कि वो लकीर खींची सरहदों पे कि आज तक इंडियंस दोबारा अपना सर उठाने का
फैसला ना कर सके, उनमें हिम्मत नहीं हो सकी। वो अलहदा बात है कि रात की तारीकी में ही उन्हें ऐसा सबक दे दिया गया कि हमारे फौजियों ने फैसला किया कि सुबह का नाश्ता दिल्ली में जाके करेंगे। लेकिन सरहदों की पासदारी, सरहदों की जो सरहदें मुनज़्ज़म कर दी गई, उसकी वजह से हम ऐसा नहीं कर सके। और पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए दुश्मनों की वो लकीर, हमने दुश्मनों के खून से वो लकीर खींची जो आज तक कायम व दायम है। और ऐसा ही एक वाक़या मैं आपके साथ एक छोटा सा वाक़या शेयर करना चाहूँगी, जिसका कि बहुत ज़्यादा मीडिया में या वैसे हम लोगों ने नहीं पढ़ा, कि 1947 में बर्रे सगीर जबकि पाको हिंद इकट्ठा था, एक फ्रांस में स्काउट्स के लिए एक स्काउट कन्वेंशन मुनक़िद किया गया, जहां पर पाको हिंद के स्काउट्स को भेजा गया। उन्हीं में मुसलमान लोग भी थे। और ये स्काउट्स बहरी जहाज़ के रास्ते फ्रांस जा रहे थे। रास्ते में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का ऐलान कर दिया गया। वो ऐलान उन स्काउट्स तक भी पहुंच गया, लेकिन जो मुसलमान स्काउट्स थे उन्होंने फैसला किया कि हम इंडिया के झंडे को सलामी नहीं देंगे, क्योंकि अब हम मुसलमानों का एक अलग वतन है। ये फैसला उनके हिंदू लीडर तक भी पहुंचा, जिन्होंने उनका खाना बंद कर दिया और वो 2-3 दिन बग़ैर खाने के वहाँ पर रहे। उन्होंने फैसला किया कि फ़्रांस में पहुंचकर हम अपने ही झंडे को सलामी देंगे। और इस सूरत हाल ये थी कि वहाँ पर सब्ज़ रंग का कोई उन्हें कपड़ा नहीं मिल सका। लेकिन हमारे बरादर मुल्क जो तुर्की हमेशा हमारे साथ आता है, वहाँ की एक खातून उनके साथ सफ़र कर रही थी, उन्होंने उनको अपना सब्ज़ दुपट्टा दिया जिसका झंडा बनाया गया। उस झंडे को उन लोगों ने वहाँ पर सलामी दी और इंडिया के झंडे को सलामी देने से इनकार कर दिया। ये वो जज्बे हैं जो कि अपने अंदर से उभारे जाते हैं। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। हम ऐसा क्यों नहीं करते? हमारे अंदर ऐसे जज्बे क्यों नहीं पैदा होते? हम अपने बच्चों को ये चीज़ें क्यों नहीं सिखाते? आज जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, मैंने इनका तारुफ आपसे करवाया है। इंशाअल्लाह इन्हीं बच्चों में से अजीज़ भट्टी शहीद और ऐसे बेशुमार लोग पैदा होंगे जो अपने वतन की खातिर कुर्बानी देंगे। उन स्काउट्स में जिन्हें हिलाले जुर्रत अता किया गया, सरफराज रफ़ीकी थे, जो 1965 की जंग में अपनी ताकत और सलाहियतें मनवाते हुए जामे शहादत उन्होंने नोश किया और उन्हें हिलाले जुर्रत दिया गया। जनाब अली, जंगें दो तरह की होती हैं, नज़रियाती और मुफादात की। आजकल जंगें ख़त्म नहीं हुई बल्कि जदीद हो गई हैं। दुनिया में क़यामत तक हक व बातिल के दरमियान तसादुम रहेगा। जैसा कि मिस्र में हज़ारों लोगों को कीमियाई जंग के ज़रिए शहीद किया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमें सिर्फ़ और पाकिस्तानियों को सिर्फ़ और सिर्फ हुब्बुल वतनी और जज्बा इस्लाम है जो कि इनको बचा सकता है। कुरान पाक में इरशाद है, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। अल्लाह ताला की यही दिन इस्लाम है। हमारी फ़ौज इन्हीं लोगों का तसलसल है जो ग़ज़वा बदर में लड़े। उन्होंने कभी सलाहुद्दीन अयूबी की क़यादत की और कभी बैतुल मक़दस में और कभी मोहम्मद बिन कासिम की तरह आज नहीं 1400 साल की नज़रियाती और जुग्राफ़ाई सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करने आ रहे हैं। इसलिए इनको पाक फ़ौज कहा जाता है, क्योंकि मोमिन हमेशा पाक होता है। मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आप तमाम अहबाब को और बच्चों को खुश आमदेद कहती हूँ और इस शेर से इजाज़त चाहूँगी। हम तो मर जाएंगे अर्ज़े पाक वतन, लेकिन तुमको, हम तो मर जाएंगे ए अर्ज़े पाक वतन, लेकिन तुमको जिंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक। बच्चे मेरे साथ इस डिफेंस डे के हवाले से पाक आर्मी